My first question to you is how does it feel to come to this I'm sorry, say it again. Yeah. How does it feel to be this kind of event as such? It feels really great. I've never been part of something like this, Sailor Award, and I feel that I'm really honored to be part of this because it's something like to do with our country, and I'm really privileged to be here tonight. How many chances you have got in life to travel to sea as such? I've actually traveled like not so much by the ocean, but just like few cruises that I've taken back in US just for vacations, like couple days cruises. So yeah, it was fun, but it's pretty scary, and I feel very like great for these people that they actually are in this kind of profession, that they're in the ocean pretty much for like half of their lifetime, you know. And how far has life changed from getting a role in Mickey Virus as such? My life has actually changed a lot, like after Mickey Virus, and I am doing a lot of movies right now, and you'll be seeing me shortly in a movie called Samrat & Company with Rajiv Khandelwal, produced by Rashtriya Productions, Kavita Bajatia, and directed by Kashik Kotak. And another movie that you'll be seeing of mine is Badlapur Boys, produced by A. Muthu. And yeah, so career is shaping up very well, and thanks to Vicky Donor, that has actually changed the graph for me as an actor. You know, Rajiv Khandelwal is a wonderful actor. He has worked in army films like Army, and this kind of movies are related to detective kind of thing, if my knowledge is concerned. Yes. What kind of role you are playing? My role is of a very I would say I'm a basanti of movie, and I'm very colorful. I'm kleptomania, and I'm very like talkative, super talkative in a way. Like I don't stop. I'm like an express sort of girl, like tar bolti jati hai. So how was the experience working with Rajiv? Very nice. Rajiv is a great guy to work with. Not just as a great actor, but he's also a great human being. I had a great time working with him. And do you want to discuss about the second movie you're working in? Sorry, what? Besides Samrat, you're working in some other movie? Yes, I'm working in Badlapur Boys and Ek Sarkari Juta, and a Punjabi film of mine will be there as well, Asi Desi. Okay. There are two more movies that I've already started working in with a few people, but can't really reveal about that right now. Thank you. सबसे पहले ये सवाल पूछूंगा कि इस तरह के इवेंट में आके कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लग रहा है. It's something different rather than what we usually do in our lives, and it's the first Marine Awards जो establish हुआ है, and meeting all the people from the marine industry is a different experience altogether rather than whatever entertainment and industrial activities we have. So it feels good and बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन आप एक आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट के तौर पे आपको कितना मौका मिलता है समुद्र से मतलब सफर करने का दुनिया में या कहीं भी? To be very frank, मैंने ज़्यादा marine I've not traveled a lot, but I would love to, and I'm very glad I'm going to be meeting a lot of people from here. So एक नया experience यहाँ से शुरू करेंगे. और मर्चेंट नेवी प्रोफेशनल के बारे में क्या कहेंगे? जैसे आर्मी के लोग कंट्री को सर्व करते हैं, तो मर्चेंट नेवी के प्रोफेशनल भी कंट्री को सर्व करते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? I think this is a very big day for all of them because they're working hard the entire year, day and night for the country, and they need to be rewarded. And I think we all come together and we need to praise them, and you know it's a big day for them. So very happy we all are here to support them, and it's a big day. So जो पंजाबियों की बैटिंग चार्ज रहती है, उससे आपने अपना नाम बना लिया. अब क्या करने वाले हैं आगे फ्यूचर में? There's a lot happening. एक मेरा Mikka Paji Shibani ka there's one version going to be releasing this month. There's a single which I'm coming up with on Mother's Day. It's going to be like an exclusive song for the Mother's Day. Movie with Percept which is coming, and done one more. There are a couple of more movies coming, so in pipeline. सिर्फ आप बताइए मर्चेंट नेवी जी बिल्कुल बिल्कुल. इन प्रोफेशनल्स को कैसे किस तरह से देखते हैं? मतलब मैं I don't know how many of us actually know shipping as an industry contributes to almost 13% of the total GDP of the country. और 13% कंट्रीब्यूट करने वाली इंडस्ट्री को की जो बैकबोन है, की जो लाइफलाइन है, वो हमारे सेलर्स हैं, जो बेसिकली मर्चेंट नेवी प्रोफेशनल्स हैं, जो it's a special day for them because it's our way of actually saluting these fantastic professionals जो शिपिंग इंडस्ट्री की बैकबोन है और हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं. I would rate them at par with
anyone who is employed with the military, paramilitary forces, etc. So ये इनका अपना तरीका है कंट्रीब्यूट करने का. कोस्ट गार्ड हो, मर्चेंट नेवी प्रोफेशनल्स हो, इंडियन नेवी के प्रोफेशनल्स हों. अगर आप कोई भी लीडिंग कंट्रीज़ देखें, जापान देखें, चाइना देखें, शिपिंग एज एन इंडस्ट्री इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पावरफुल इंडस्ट्री है, बहुत सॉलिड इंडस्ट्री है जहाँ पे बिकॉज शिपिंग इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ actually creating a global connect with your economy. So ये लोग हैं जो मर्चेंट नेवी प्रोफेशनल्स हैं, शिपिंग प्रोफेशनल्स हैं, सेलर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री की लाइफ लाइन है. इट्स आवर वे ऑफ एक्चुअली सल्यूटिंग their contribution, saluting them by acknowledging their contribution to this industry. So I'm proud to be here. Fantastic experience. आपसे लास्ट क्वेश्चन है, आपको कितनी बार मौका मिला है समुद्र से तय करने का सफर कहीं भी कंट्री में या अब्रॉड? मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है. मालदीव्स, मॉरिशस से मैं 2 बार सेल कर चुका हूँ. और वो एक अलग दुनिया है एक्चुअली. उन दिनों में जब आप जितने समय तक आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो एक अलग आपकी एक दुनिया बन जाती है. तो जब आप 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन आप जब दूर रहते हैं, तो आपको जब आपका घर मिस करते हैं आप वापस, तो आप सोच सकते हैं ये प्रोफेशनल्स हैं जो 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना ये लोग अपने घर से, फैमिली से दूर रहते हैं. तो उन 4 दिनों में जब आप सेल कर रहे होते हैं, आपको समझ में आता है व्हाट दीज गाइज मस्ट बी गोइंग थ्रू. सो हैट्स ऑफ, माय सैल्यूट टू ईच वन ऑफ देम इन्वॉल्वड इन द इंडस्ट्री. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. 2 लोग इस समय आपके सामने हैं. हम दोनों ने एक फिल्म की है, बदलापुर बॉयज. वही सड़ा हुआ जोक मैं मारूंगा. बॉय में था, बदल ये रही थी. अभी ये मुस्कुरा रही हैं. आप उस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Oh my God, that film was amazing experience to work. हम लोग रात को शूटिंग स्टार्ट करते थे 12 बजे, और मैं इनको 3 बजे मिलती थी सेट पे, और मैं सिर्फ इनको ऐसे दूर से हाय कर दी थी. हाय. इतनी हमारी बात होती थी वहाँ पर. क्या फिल्म का मतलब कॉमेडी फिल्म है क्या, सब्जेक्ट क्या? पता नहीं, मतलब कोशिश तो थी कि एक अच्छी फिल्म बनाए. फिर वो अल्टीमेटली बनी क्या है, क्योंकि मैंने देखी नहीं, देखी इन्होंने है, तो ये बेहतर बता पाएंगी. बट फिल्म अच्छी बनी है. अमन जी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा है. आई कैन नॉट इवन लाई अबाउट दैट. एंड ये सब मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं कह रही हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. थैंक यू. एंड फिल्म मैं देख चुकी हूँ, काफ़ी अच्छी बनी है. इट्स अ रीमेक ऑफ अ फिल्म फ्रॉम तेलुगु एंड तमिल. सो इट्स ऑफ कोर्स केम आउट रियली मच बेटर देन व्हाट दे हैव मेड इन साउथ. तो हमारे जितने भी इमोशंस थे वो तेलुगु और तमिल स्टाइल के थे. नहीं ऐसा कुछ नहीं था. मतलब वो there's 2 girls in the film, so I'm playing one of the girls, so I have a parallel leading role in it basically. मैं आई थिंक आई वाज द अदर गर्ल. तो दूसरी लड़की थी. अच्छा ठीक है, वो इसलिए हंसे मेरे ऊपर. अच्छा, तो मैं अपने कैरेक्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैं वो लड़का गांव से आता है शहर, तो मुझसे मिलता है. मैं शहर वाली लड़की हूँ जो उसको काफी सपोर्ट करती है टू फॉर हिज करियर एंड एवरीथिंग. सो ऐसा कुछ है मेरा. मैं ज्यादा नहीं रिवील करना चाहती. नहीं कर सकती. नहीं कर सकती. थैंक गॉड शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है. अरे मैं फिल्म देख चुकी हूँ, बात कर रही हूँ. फिल्म शूट हो चुकी है कि नहीं? को एक्टर ये हैं, एक तमिल तेलुगु के हैं. हाँ. कितने दर्शकों देखेंगे फिल्म रिलीज हो रही है? May में. That's what they're saying. मे भी मे में हो. अच्छा, यहाँ के अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज सर मर्चेंट नेवी सेलर्स अवार्ड, आप इस प्रोफेशनल को कैसे मानते हैं? मतलब कितना कंट्रीब्यूशन होता है कंट्री के अपलिफ्टमेंट में? अब सेलर्स और आर्मी के लोगों की बात कर रहे हैं. भाई मेरे पिताजी फौज के हैं, तो ये एक सीरियस मुद्दा है. तो डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि जितने भी लड़के बड़े होते हैं, जैसे अमेरिका में है, आपको ज़िंदगी का 1 साल फौज को देना पड़ता है. और ये मेरा मानना है कि हर यंगस्टर को 21 साल की उम्र के बाद 1 साल अपनी ज़िंदगी का हिंदुस्तानी फौज को या एयरफोर्स को या नेवी को देना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि आप अपने देश के लिए डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं. और ये कंपलसरी होना चाहिए. इसमें कोई में इस कंपल्सरी. हाँ, और ये बिल्कुल इसमें कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए. इट शुड एब्सोल्युटली बी अ रूल, ताकि सबको पता लगे कि देश के लिए जो लोग सोल्जर्स बाहर बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ रहे हैं, वो सारी जिंदगी अपनी बिता देते हैं, और हम लोग यहाँ पे अवार्ड्स के में आके इंटरव्यू देते हैं. लेकिन सर दूसरे कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में काफी स्टैंडर्ड हाई है अगर देखा जाए डिफेंस के प्रोफेशनल्स का, आर्मी या नेवी. तो यहाँ क्यों नहीं हाई है? किसने बोला कि यहाँ हाई नहीं है? हाई है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. नहीं, आप कंपेयर मत कीजिए ना. आप तो सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं.
आप कंपेयर ये अमेरिका से क्यों कर रहे हैं? आप कंपेयर कीजिए, पाकिस्तान के सामने हम बहुत आए हैं। अगर वो लोग मतलब अपनी आर्मी को इतना बढ़ा सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एंड मेरा ये मानना है कि कंपलसरी होना चाहिए 1 साल हर यंगस्टर को हिंदुस्तानी फौज, नहीं तो नेवी, नहीं तो एयरफोर्स में जाके अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। अपने देश को एक साल तो दे ही सकता है। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? एज एन इंडिविजुअल आपको कितनी बार मौका मिला सफर करने का समुद्र से कंट्री में या अब्रॉड कहीं भी? बहुत, कई बार। हम तो शोज के लिए इतना ट्रैवल करते रहते हैं। सो आई मीन आई रिमेंबर माई फादर वाज एट पोर्ट ब्लेयर, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वहाँ से हम शिप लेके जाते थे, ट्रॉलर लेके जाते थे टुवर्ड्स द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। एंड आई ट्रैवल्ड ऑल कैलकाटा से वी हैव ट्रैवल्ड टू द अंडमान एंड निकोबार इन अ शिप। सो I've done everything. T20 वर्ल्ड कप में कल इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, तो कितनी चांसेस है इंडिया के जीतने की वर्ल्ड कप T20? भाई क्रिकेट का मुद्दा तो यही होता है कि हम पाकिस्तान से जीत रहे हैं, बाकी सब देखिए। बात यही है कि नहीं? कंप्लीटली एवरीथिंग वन। सो बट एनीवे, थैंक यू सो मच एंड शी इज लुकिंग प्रिटी। Oh, thank you. Thank you very much, guys. चलिए, हाउ आर यू गोइंग? मेरी तो गाड़ी है, It's right there. The white one. Oh, you driving? Nisha? Thank you. Really appreciate you coming.